Hello students, today I am going to explain calculation of interest on partners capital. Okay, so try to understand. See students, one side is the firm and the other side are two partners, and these two partners invested money into the business. Okay, and in return the firm will pay interest on capital to the partners. Whenever the partners will invest money into the business, that is called what? Capital. And in return, the firm will pay interest on capital to these partners. Okay. Now, according to firm point of view or business point of view, this interest on capital is an expense for the firm. Okay. Now, if question asks, what will be the journal entry for this interest on partners capital? Okay, but before that you try to understand. Already I've explained in my previous video how to prepare partners capital account or partners current account under fixed method or fluctuating method, right? So see here, if interest on partners capital given and question asks to prepare either partners capital or partners current account, तो where you will put this interest on capital? आपको कहाँ में इसको लिखना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ में लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है. ठीक है, जैसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट बोल लो, तो वन साइड इज डेबिट एंड अदर साइड इज क्रेडिट. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको कौन सा साइड लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है. ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू हैव टू क्लोज एंड यू हैव टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कौन सा साइड? डेबिट साइड. ओके, दैट मीन्स व्हाट स्टूडेंट? दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ओके, एंड देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, एंड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is a gain for the partners, so their respective account, that is capital account or current account, are what? Credited. Okay, now question arises here, what will be the journal entry for this interest on capital? So I'm going to show you now. Try to understand. Okay, see here. When capitals are fluctuating, you know that there are two methods for the preparation of partners capital account. One is fluctuating method, another one is fixed capital method. तो पहले ही हमें क्या लिखा है? For allowing interest on capital. ठीक है, तो interest on capital will be debited and to partners capital credited होगा. ठीक है, and this interest on capital you have to close, okay, at the end of the financial year, that is you have to transfer to profit and loss appropriation account. The profit and loss appropriation account debit to interest on capital account. But under fixed method, what will be the journal entry? See here, for allowing interest on capital, entry will be interest on capital account debit to partners current account. क्योंकि ये fixed method है, इसलिए हमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? current account लिखना पड़ेगा. और अगर fluctuating है तब आपको हमें क्या लिखना पड़ेगा? capital account. ओके, इसी तरह फिर इसको आप क्लोज कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया गया है, जब इसको क्लोज कर दोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट. ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ में दिखाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो जगह में रिकॉर्ड किया जाता है. एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट. ठीक है, कौन सा साइड? क्रेडिट साइड. इसके लिए एक जर्नल एंट्री, और दूसरा जो जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, इसके लिए एक जर्नल एंट्री. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, आई एम गोइंग टू शो यू वन सम रिलेटेड टू दिस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, रिंकी एंड सीमा आर पार्टनर्स इन ए फार्म. ये दो पार्टनर है. Their capital accounts as on April 1, 2009 showed a balance of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. तो हुआ क्या? दोनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है
ओपनिंग डेट में, दैट इज अप्रैल 1 2009, मतलब फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर कब बिगिन होता है? 1 अप्रैल, और क्लोज कब होता है? 31 मार्च, राइट। तो ये अप्रैल 1 2009 को रीना का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, वो है 2 लाख, और सीमा का जो बैलेंस है 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस कैसे समझा? क्योंकि अप्रैल 1 का बैलेंस है, इसीलिए ये रिंकी का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, और सीमा का ये ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ओपनिंग कैपिटल है दोनों का, ठीक है। ऑन जून 1 2009, फिर से क्या हुआ? जून 1 2009 को रिंकी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹36,000, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या है कि आप जब तीसरा बार जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, तो उसे एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2009 को सीमा ने फिर से कैपिटल इन्वेस्ट किया 24,000। एज पर द एग्रीमेंट इंटरेस्ट इन कैपिटल इज टू बी अलाउड 9%। तो कितना परसेंट करके आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 9%। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल टू बोथ द पार्टनर्स। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है दोनों पार्टनर्स का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2009 to 2010, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी देखो स्टूडेंट, यहां में ये देखो दो पार्टनर है, एक है रिंकी और दूसरा है सीमा। सबसे पहले क्या हुआ? रिंकी का जो कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, वो कौन से डेट का था? 1 अप्रैल 2009, ठीक है। और ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2010 को, ठीक है। तो जिस डेट में आपका कैपिटल है या जिस डेट में आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, उस डेट से लेके लास्ट डेट तक फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जितना मंथ्स हो रहा है, इतना मंथ्स का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो डेट 1 का जो ओपनिंग कैपिटल है रिंकी का, वो कितना है? 2 लाख, ठीक है। कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट? 9%। तो ठीक है, तो 2 लाख का ऊपर 9%, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट रिंकी को मिलेगा। इसी तरह जो सीमा है, सीमा का भी सेम डेट है, 1 अप्रैल 2009 को बैलेंस है सीमा का, ओपनिंग बैलेंस, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, 1 लाख रुपीस। तो यहां में क्लोजिंग डेट कब है फाइनेंशियल ईयर का? 31 मार्च 2010 होगा, ठीक है। तो यहां में भी 12 मंथ्स हो रहा है, ठीक है, 9% करके इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद रिंकी ने फिर से कैपिटल इन्वेस्ट किया, कब? 1 जून 2009 को, ठीक है। तो इस डेट से लेके इस डेट तक इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक कितना मंथ्स हो रहा है? 10 मंथ्स हो रहा है। तो 10 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा 36,000 के ऊपर, कितना परसेंट करके? 9% करके, ओके। सिमिलरली सीमा ने भी फिर से कैपिटल इन्वेस्ट किया था, जिसे एडिशनल कैपिटल बोला जाता है। तो 1 अक्टूबर 2009 को इन्वेस्ट किया, और यहां से लेके यहां तक कितना मंथ्स हो रहा है? 6 मंथ हो रहा है। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट 24,000 का ऊपर 9% करके मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 लाख का भी इंटरेस्ट निकालना है, 36,000 का भी इंटरेस्ट निकालना है, यहाँ में से सीमा का 1 लाख का भी इंटरेस्ट निकालना है, और 24,000 का भी इंटरेस्ट निकालना है, ओके। नाउ अभी देखो यहाँ में किस तरह कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ में क्या लिखा? सोल्यूशन। सबसे पहले हेडिंग में आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ओके। सबसे पहले रिंकी का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को कैलकुलेट किया जाएगा। तो फॉर रिंकी, ठीक है, डेट कौन सा था? देखो यहां में 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2010, 2 लाख रुपीस, ठीक है। तो यही डेट यहां में लिखा गया 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2010, ठीक है। कैपिटल कितना था? 2 लाख। रेट कितना है? 9%, ठीक है, 9% करके, तो 9% मतलब 9/100। और कितना मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा? 12 मंथ्स का। तो इसलिए ऊपर में 12 लिखा गया है, और इस मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, इसलिए नीचे में 12 लिखा गया है, ठीक है। नाउ 12 and 12 कैंसिल, ओके, 12 कैंसिल, देन 0 कैंसिल, तो 2000 into 9, 18,000 रुपीज, ओके। फिर रिंकी ने फिर से कैपिटल इन्वेस्ट किया, कब? 1 जून 2009 को, है ना, नहीं, 1 जून 2009 को फिर से रिंकी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, ठीक है। ये जो डेट है, और 31 मार्च 2010 को क्लोज हो रहा है। तो ये डेट आप लिखोगे यहाँ में। तो कितना मंथ्स हो रहा है यहाँ में? 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल कितना है? 36,000 लिख दो आप। परसेंट कितना है? 9%। तो 9% मतलब 9/100, और 10 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10/12, ओके। तो इस तरफ कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ में जो है आपको क्या करना पड़ेगा?
यहाँ में 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, ओके। तो 9 3 जा 27, ओके, एंड 1 0 1 0, तो 2 0 बच गया, ठीक है। इसका बाद दिस टू एड टुगेदर, तो 0 0 7 8 प्लस 2 10 0 1 एंड 1 प्लस 1 2, इसका मतलब है 20,700 टोटल इंटरेस्ट मिलेगा किसको, रिंकी को, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट सीमा का। नाउ सीमा यू सी हियर फॉर सीमा, तो सीमा का ओपनिंग बैलेंस कौन सा डेट में था, देखो 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2010, तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख का ऊपर कितना परसेंट करके, 9% करके, ओके। तो देखो यहाँ में 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2010 कैपिटल कितना लगा, ओपनिंग बैलेंस कितना है, कैपिटल 1 लाख, कितना परसेंट, 9%, तो 9% मतलब 9/100, ओके। और कितना मंथ्स, 12 मंथ्स, राइट। तो 12 मंथ्स मतलब देखो यहाँ में 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो 12 मंथ्स, 12 ऊपर में लिखना है, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो नीचे में 12 लिखना है। इसके बाद 12 एंड 12 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, ओके। तो 9 1 जा 9 एंड 0 0 9,000। फिर सीमा ने सेकेंड टाइम कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, जिसे एडिशनल कैपिटल बोला जाता है। तो कौन से डेट में किया था, देखो यहाँ में 1 अक्टूबर 2009, और आपको फाइनेंशियल ईयर का जो एंड है दैट इज 31 मार्च 2010 यहाँ तक लेना है। तो कितना मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना 24,000, कितना परसेंट, 9%, ओके। तो यहाँ में 1 अक्टूबर 2009 टू 31 मार्च 2010, ओके। तो कैपिटल कितना है 24,000 और रेट कितना था 9%, तो 9% मतलब 9/100, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मंथ्स हो रहा है, 6 मंथ्स हो रहा है, राइट। तो आपको यहाँ में क्या करना है, 6 मंथ्स लिखना है, और मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो नीचे में लिखना है 12, ओके। नाउ 12 2 जा 24, 0 0 0 0 कैंसिल, ओके। तो दैट मीन्स 9 2 जा 18, 18 6 जा 108 और एक 0 बच गया, ठीक है, 1080 आ रहा है। नाउ दिस टू एड टुगेदर देन यू विल गेट 10080, ठीक है, मतलब 10,080 रुपीज, ओके। तो ऑल टोटल रिंकी जो है, रिंकी का ओपनिंग बैलेंस इतना था, इसका ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। फिर रिंकी ने सेकंड टाइम इन्वेस्ट किया कैपिटल 36,000, इसका ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो ऑल टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा रिंकी को दैट इज 20,700 मिलेगा। इसी तरह सीमा का ओपनिंग कैपिटल था 1 लाख, 1 लाख का ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, 9,000 रुपीज। और फिर सीमा ने सेकंड टाइम फिर कैपिटल इन्वेस्ट किया 24,000, तो 24,000 के ऊपर फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया 6 मंथ्स का, तो 1080 आ रहा है। तो दोनों को आप प्लस कर दोगे तो 10080 आ रहा है, मतलब 10,080 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा किसको, सीमा को, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी easy how to calculate interest on partners capital. I think you understand, okay. So okay then, thank you for today.